So good morning everyone. Today we'll understand about the practical question, a very short question today I'll give you for the cash flow from the operating activities. Okay, so let's start. Now see, we have discussed in the previous videos what is cash flow statement. Basically the cash flow statement is the statement which shows you the inflows and the outflows of the cash and the cash equivalents during a given period of time. Basically we have discussed about it in the previous videos. It is just whatever the cash is coming into the business, how much of the cash is going out of the business. This keeps a record of all these transactions. Okay, and this is for a given period of time only. So it basically shows the changes resulting in the flow of the cash and the cash equivalents. Now there might be some change in the cash flow. Suppose for example 2016 में, in 2016 ठीक है, the cash flow was 18,000. ठीक है, and in 2017 the cash flow in the net result of the cash flow was 20,000. 18,000 से कितना हो गया 17 में, 18,000 से कितना हो गया 2016 में कैश फ्लो वाज 18,000. ठीक है, 18K, and in 2017 it became 20K. So what does it mean? That means there is increase in cash flow of 2,000 rupees. So this is what changes resulting in the flow of the cash and the cash equivalents, right? Now because these changes arises because of three activities, because there might be cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. We have discussed about the cash flow and cash equivalents. Cash basically your cash in hand and cash at the bank, and cash equivalent basically they are short term liquid investments which can be easily converted into cash. We already discussed like short term investment, जैसे आपकी FD है, आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, चेक्स, बैंक चेक्स होते हैं. उसके बाद यू हैव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यू हैव मेड समवेयर लाइक एफडीज. ओके, सो बेसिकली योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपकी होती हैं, दीज कम अंडर द कैश इक्विवेलेंट्स. The short-term deposit, marketable securities, commercial papers, money market funds, investment in preference shares. Okay, these all are for a certain period of time, for a very short period of time, and they can be easily converted into cash. So they are cash equivalents. Now we discussed about the three activities. See, this is a format: cash flow from operating activities, cash from investing activities, and then cash flow from financing activities. We calculate the cash flow from operating activities in a net way, that is net cash flow from operating activities. Okay, net cash flow from operating activities, the net cash flow from investing activities, the net cash flow from financing activities. Okay, then whatever is the difference, whatever is the change, suppose this is in plus, this is in minus, and this is in plus. Okay, for example this is plus 4,000. Okay, I'm not writing here, I'm writing K over 4,000. This is minus 2,000, and this is plus 6,000. Okay, so what is the net cash increase or decrease? Can you calculate now? 6 plus 4, 10,000, minus 2,000, so 8,000 plus. So net effect will be plus 8,000. Understood? This way you calculate the answer. And now you have to write down add cash in the beginning of the year. This cash and cash equivalents will be given in the question. ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा. ठीक है, और ये क्वेश्चन में आंसर में दे रखा होगा आपको. तो कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज आपको ये दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको सपोज दे रखा है बिगिनिंग में आपका कैश था 2,000 दे रखा है. ठीक है, तो आपका टोटल कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया 10K. समझ आ गया? तो ये आपका फॉर्मेट है जो आपको समझना है. सो यू हैव टू, व्हेन यू कैलकुलेट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश फ्लो from the three activities, this is net cash increase or decrease in the cash flow, then I have to add the cash in the beginning of the year, and then you will get the net result of cash at the end of the year. This is your final answer. This is a format in which you have to explain your answer. Now last video we discussed about these things. I have taken this particular 4 slides of out of the previous video because we will be discussing the practical question. So I just want to revise you that do not forget this video before going to the question. Okay, because if you don't understand this particular part of the video, you will not be able to understand any question.
सो इसमें हम जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो उसमें हम नॉन कैश इनकम की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स की, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, एंड उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश expenses की. So for all these explanation you have can go to my previous video of cash flow from operating activities for an explanation in detail. Okay, I have explained all these 4 slides in a very proper and detailed way in the previous video, and then you come back to this new video so that the questions are more clear. अब basically मैंने क्यों लिया है, because जब हम cash flow from operating activities निकालेंगे तो हमें adjustments करनी पड़ेगी किन चीजों की, नॉन कैश एक्सपेंसेस की, नॉन कैश इनकम्स की, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ये 4 एडजस्टमेंट्स हम करेंगे और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज होती है, ठीक है। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट गिवन टू यू, net profit before tax and extraordinary items. You add back the non-cash and operating expenses, then you deduct the non-cash and non-operating incomes, and then the answer becomes profit before working capital changes. Okay, and in this you add decrease in current assets, increase in current liabilities. इसमें you less increase in current assets and decrease in current liabilities, and then after doing this you get cash operated from operations, cash generated from operations, and then you subtract the income tax, then finally you get the answer cash from operating activities. अभी आपको ये सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसका सिंपल सा मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। जब आप क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो पहले आपने हेडिंग डाल दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी कॉपी ले लीजिए एंड राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके लिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है, कई बार आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में से, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये सब आपका निकल जाता है उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है ये, इसमें जब आप वो 4 एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, ध्यान से लिखिएगा प्लीज, लिखिए जो मैं कह रही हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग डाल दी, उसके बाद लिखिए फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, in this you have to make adjustments of 4 things. Don't write add or minus, just write down, do adjustment for non-operating expenses, do adjustment for non-operating incomes, do adjustment for non-cash incomes, do adjustment for non-cash expenses, ठीक है। ये चारों के एडजस्टमेंट करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग, ये सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा जो है, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है, समझ रहे हैं आप। पहले हमारा नेट प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 3-4 पार्ट है इसमें, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये तो क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 एडजस्टमेंट जब आप कर लेंगे उसके बाद आपका आंसर आएगा, ये आपको याद करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, 4 एडजस्टमेंट्स करनी है आपको, कैसे वो भी लिख लीजिए। Do adjustment for current assets, do adjustment for increasing current assets, do adjustment for increasing current liabilities, then do adjustment for increasing current assets, do adjustment for decreasing current liabilities। 4 एडजस्टमेंट यहाँ भी करनी है, फिर 4 एडजस्टमेंट करने के बाद आंसर विल बी ये वाला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, आपकी थर्ड पॉइंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप इनकम टैक्स फाइनली पे कर देंगे, क्योंकि इसमें अभी टैक्स इंक्लूडेड है पहले वाले में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें टैक्स को माइनस करना है, तो टैक्स माइनस कर दिया हमने, ये वाला माइनस इनकम टैक्स पेड, तो हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है वो सारे यही वाले हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स, समझ में आया। तो पहले हमारा पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें निकालना है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मेरे को वो प्रॉफिट चाहिए जिससे पहले मेरी वर्किंग कैपिटल चेंज हो सकती है। वर्किंग कैपिटल किन चीजों से चेंज होगी, मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से, तो इसकी एडजस्टमेंट हमने फिर यहाँ करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब अभी वर्किंग कैपिटल में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, अभी मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट्स नहीं करी है, तभी हम बिफोर लगा रहे हैं। बिफोर कब क्यों लगाते हैं, जब हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी होती है। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम निगम निकाल रहे हैं, इसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने भी टैक्स माइनस नहीं किया और हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स माइनस नहीं करे अभी। जब हम टैक्स माइनस कर दिया तो हमारा लास्ट में क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इनकम टैक्स पेड। लेकिन जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है वो बहुत सारे हैं। कैसे आइटम्स है हमारे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
उसके बाद जब हम ये चारों एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। अब हम दो एडजस्टमेंट्स किन की करेंगे, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज। तो इससे क्या है, मेरी वर्किंग कैपिटल की जो चेंजेस है वो मैंने एडजस्टमेंट कर ली। फिर मैं मेरा क्या निकलेगा, अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद फाइनली द आंसर माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, फिर हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चार चीजें याद करनी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, थर्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फोर्थ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इनके बीच में चार चार एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखेंगे तो उसकी भी हम चार एडजस्टमेंट्स करेंगे। कौन कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जब उसके बाद आप ये निकाल लेंगे, फिर आपको क्या आंसर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसमें आप वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे जो किससे होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। फिर अगेन आप चार एडजस्टमेंट्स करेंगे, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज। ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब क्या निकलेगा आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड। फिर हमारा क्या निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पूरा चार्ट समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आपको याद करने में आसानी रहेगी कि आपको चार से एडजस्टमेंट्स करनी है इनमें। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करिए। कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अगर क्वेश्चन के अंदर कई बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सपोज दो चीजें दे रखी होंगी। इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉफिट इन 2016, प्रॉफिट टू 2017, तो दोनों ईयर के प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट ले रखा है इसका है 2 lakhs। ठीक है, और इसका प्रॉफिट था न्यू ईयर का 3 lakhs, तो आपको प्रॉफिट टोटल कितना हो गया माइनस करके 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे क्वेश्चन में बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें हमको ऐड और माइनस समझना है। आप ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सॉरी, हर क्वेश्चन में आपको पूरा नेट प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर दे रखा हो। तो कई बार तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, कई बार नहीं दे रखा होता है। जब नहीं दे रखा होता है तो हमारी एडजस्टमेंट्स क्या है, सुन लीजिए, पेपर कॉपी लीजिए, फिर उस पर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना था, उसका माइनस जो आपको लेना है, सब डिफरेंस लेना है। सपोज 3 लाख था 2016 में, 3 लाख 2015 में 2 लाख था, तो माइनस करके कितना आ गया आपका 1 लाख। 1 लाख इज योर डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, ये लिख लिया। उसके बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है वो समझिए। Now to add the dividend paid during the year, you have to add the interim dividend paid during the year, then you have to add the profit transfer to the reserve, then you have to add the provision for taxation made during the year, and then you have to subtract the refund of tax. ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे याद करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है याद करना, उसका मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हम चार चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन कैश इनकम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं और हम कब माइनस और प्लस करते हैं। लेकिन इस वाले को मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कैसे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस के बारे में सुना हुआ है। सपोज करते हैं हम 2017 का वो बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप मुझे बात बताइए, जब हम कंपनी कोई प्रोविजन बनाती है तो उसमें प्रीवियस ईयर का डेटा भी दे रखा होता है, उसमें पता है आपको प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, उससे हम निकालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे चेंजेस को हम एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हमारे चेंजेस कौन कौन से ईयर में कैसे हुए, 2016 के अंदर सपोज करिए 2016 में का डेटा भी दे रखा होता है, 2017 का डेटा भी दे रखा होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जब प्रॉफिट आप देते हो, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
लेकिन इसको करने से पहले आप वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब मुझे आप कहेंगे कि याद कैसे करें कि ऐड किसको करना है माइनस किसको करना है, ठीक है, वो समझ रहे हैं हम। अब देखिए 2016 और 17 का डेटा ले लेते हैं, 2018 का भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके अब 2016 में आप मुझे बात बताइएगा, जब प्रॉफिट आप कोई कंपनी सपोज प्रॉफिट अर्न करती है, तो मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो साल के बिगनिंग में ही अर्न कर लेती है? नहीं, साल के एंड में अर्न करती है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न होता है या पहले हो जाता है? पहले आप बताइए मुझे ध्यान से, साल के बिगनिंग में होता है कि एंड में होता है? बिगनिंग में होता है, ठीक है। हम कौन सा डेटा बना रहे हैं ध्यान रखिएगा, 17 का, ठीक है। तो 2016 में प्रॉफिट जो था मेरा, वो मेरा आया था 40,000, ये मेरा एंड ऑफ द ईयर आया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर है। चलो 4,000 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें मेरा प्रॉफिट जो आया है वो मेरा आया 5,000 सपोज। और इसमें जो मेरा प्रॉफिट आया वो आया 7,000। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है, जब एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ये बात आपको समझ में आती है ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पहली बात ये समझिए, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रॉफिट प्रॉफिट जो नेम का इनकम स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके बाद हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने प्रॉफिट वहां पर जो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कमाया 2016 का प्रॉफिट, ठीक है, वो मेरा 2016 का प्रॉफिट था। जब मैंने उसे रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो मैंने 2017 में ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि वो तो मेरा एंड ऑफ द ईयर खत्म हो चुका था। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट करते हैं, अगर सपोज करो मैंने 2017 में 4,000 का प्रॉफिट कमाया, सॉरी 2006 में 4,000 का प्रॉफिट कमाया, 2017 में 5,000 का कमाया और 2018 में 7,000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर कमाया है, ये मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं कमाया। तो इसका मतलब जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, जब प्रॉफिट को डिविडेंड दूंगी, तो मैं 2017 में दूंगी या 2016 में दे दूंगी? 2017 में दूंगी। कौन सा डिविडेंड? 2016 का डिविडेंड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 2016 का डिविडेंड मैं कब दूंगी? 2017 में, ठीक है। दैट मींस वो 2017 में जो मैंने डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड उस साल का नहीं था। दैट वाज अ that was not the expense of 2017. That means in 2017 no cash was paid during 2017, because that was the amount of cash which was paid in 2016, which has already been subtracted from my net profit. जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया होगा, तो आपने वो डिविडेंड जो आपने दिया, वो आपका उसमें से माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको ऐड बैक करेंगे, द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है आपको इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट में से पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया है। समझ आया? क्योंकि ये जो डिविडेंड है मैं किसका पे कर रही हूँ? 2016 का पे कर रही हूँ, तो ये 2017 में से तो मेरा मेरा ऐड होना ही नहीं चाहिए। मैं 2017 के प्रॉफिट में इसको कैसे माइनस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आई हैव टू ऐड बैक दैट प्रॉफिट, तो सॉरी ऐड बैक दैट डिविडेंड, बिकॉज दैट डिविडेंड हैज ऑलरेडी बीन पेड, okay, during 2016, but cash was not paid during 2016 because it was done at the end of the year. जब ईयर मेरा खत्म हो गया, उस टाइम मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकला? 4,000। उसमें से मैंने डिविडेंड जब बांटा, तो वो डिविडेंड जो मैंने बांटा है वो 2017 का नहीं है, वो किसका है? 2016 का है। अब 2017 में से तो मैंने माइनस कर रखा है, लेकिन तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगी, जिससे मेरा मेरा जो कैश फ्लो ऑपरेशन है वो प्रॉपर अच्छे से निकल पाए। समझ आया? तो इसलिए मैं डिविडेंड को ऐड बैक करूंगी। अब वही सेम चीज इंटरिम डिविडेंड का सेम चीज है। वही इंटरिम डिविडेंड जो आप 6 महीने में पे करते हो और थोड़े मंथ्स के बाद पे करते हो, वो भी यही है कि एक साल का जो डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, उस साल में पे नहीं होता है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट बना रहे हो ये द एंड ऑफ द ईयर बन रही है, ईयर के एंड में बन रही है। तो ईयर के एंड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है आपका, 31 दिसंबर को बनता है, तो नेक्स्ट ईयर तो पे किया आपने, तो 2017 का तो नहीं है ना वो एक्सपेंस, तो 2016 का था। तो इसलिए वो जो डिविडेंड पे था वो आपका आपने ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। ऐसे इंटरम डिविडेंड को भी ऐड बैक कर दो, सिंपल। थर्ड वाला भी देखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। इसमें जो प्रॉफिट मैंने 2016 में कमाया होगा, वो प्रॉफिट मैंने
किसका होगा? वो प्रॉफिट मैंने जो ट्रांसफर किया रिजर्व में, वो मैंने कौन सा ट्रांसफर किया? 2016 का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, क्योंकि 2016 एट द एंड ऑफ द ईयर बना है। तो जो मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो 2016 का प्रॉफिट था, जो मैंने 2017 में जब मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो वहां मैं ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ, तो यहाँ मुझे एड बैक करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो प्रॉफिट मेरा वो उस ईयर, ये मेरा रिजर्व इसमें ऐड होगा। समझ आया? तो इसे ऐसे ही 2018 का जो प्रॉफिट है, 2017 का जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, इसका प्रॉफिट जो 2018 का जो अमाउंट पे होता है, 18 में जो अमाउंट पे करेंगे हम, वो 2017 का पे होगा 5000 इधर। तो 2017 का पे होगा, 18 का नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो इस साल का 2017 का जो डिविडेंड है वो हम कब पे कर रहे हैं? 2018 में पे कर रहे हैं, तो वहां वो 2018 का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इसलिए हम उसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट कर रखा है वो एक्सपेंस, तो माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सॉरी, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, वो माइनस अभी नहीं करना है, वो ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस साल का है ही नहीं। समझ आया? और हमें नेट प्रॉफिट किसका निकालना है? इस साल का, इस साल के नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इसलिए हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक पॉइंट है। आपने कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरा एक्सपेंस बनाते हैं ना, कि मेरा इतना टैक्स मेरा जाएगा ही जाएगा शायद इस साल। प्रोविजन क्या होता है? कि मैं एक कंटिजेंसी फंड निकाल के रख रही हूँ कि इतना मेरा टैक्स जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरा क्या है? मैंने एक्सपेंस निकाल के रख दिया, जो मैंने माइनस किया होगा लास्ट ईयर, मैंने माइनस किया होगा अपने नेट प्रॉफिट में से। तो अब इस ईयर के प्रॉफिट का तो प्रोविजन नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, मैं आपको फिर समझाती हूँ। सपोज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने इधर बनाया था 1000 का, ठीक है? इधर आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 3000 का, इधर आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था सपोज 4000 का, ठीक है? अब यहाँ जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने माइनस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इतना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो था मैंने लास्ट ईयर का बनाया हुआ है। जब टैक्सेशन का प्रोविजन बनता है वो आपने पूरे साल का, जब आपने बनाया, आपको लग रहा है इतना मेरा टैक्स जो है, ये मेरा जो टैक्स है, इतना मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सॉरी, मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस साल का जो बनाया है वो आपका इस साल का थोड़ी है। इसमें भी दो चीजें होंगी, लास्ट ईयर का प्रोविजन और न्यू ईयर का प्रोविजन। इसके भी बहुत चीजें हैं, आगे बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि आपने जो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, इसमें अभी आपका टैक्स गया नहीं है। ठीक है, इसमें अभी आपका टैक्स गया नहीं, आपने प्रोविजन बनाया, तो वो आपका एड बैक ही होगा, आप उसे माइनस नहीं करो, तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका प्रोविजन, वो आपने प्रोविजन बनाया वो एक्चुअल में नहीं गया है, वो एक्सपेंस अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है, आपने सिर्फ प्रोविजन बनाया है, वो एक्चुअल में कैश अभी नहीं गया है, तो आपने माइनस कर रखा है, तो इसको ऑलरेडी प्लस कर दो। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, यहां पर आप माइनस करो रिफंड ऑफ टैक्स। अब इसमें ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है, लास्ट ईयर का रिफंड आया होगा मेरे पास, जो जैसे अब टैक्स रिफंड जो होता है क्या होता है, जो लास्ट ईयर का जो रिफंड होता है, सपोज आपको जो 2016 का रिफंड है वो 2017 में मिलता है, 2017 का जो टैक्स रिफंड है आपको 2018 में मिलेगा, तो 2017 में जो रिफंड आपको मिला 2016 का रिफंड है वो, तो उसमें आपने ऑलरेडी प्लस कर रखा है अपने नेट प्रॉफिट में, तो उसको माइनस करो, क्योंकि वो उस ईयर का नहीं है। समझ आ गया? ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि पहले आपको नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस, देन ऐड बैक द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, देन ऐड बैक द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज ये सब लास्ट ईयर के हैं, then add back the profit transfer to the reserve, then add back to the provision for taxation made during the year, and then subtract the refund of tax credited to the profit and loss account to the previous year। समझ आ गया? फॉर्मेट ये आपके सामने, ठीक है? और लास्ट ईयर मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम। अब देखिए आइटम्स टू बी एडेड, अब मुझे आप बताइएगा इसमें से नॉन कैश इनकम, नॉन प्रॉफिट इनकम, वो सब क्या चीजें हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, जो मैंने अब इसमें देखिए आपका नेट प्रॉफिट निकल गया, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की, जो मैंने आपको बताया था अभी, जो आपने कॉपी में लिखा हुआ है। अब पहला हमारा डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस है, समझ आ गया? डेप्रिसिएशन सच में थोड़ी जाता है, तो माइनस करना पड़ता है, सच में थोड़ी एक्चुअली जा रहा है आपका, तो वो क्या हो गया आपका नॉन कैश एक्सपेंस, एक्चुअल में आपका कैश थोड़ी जा रहा है डेप्रिसिएशन में। गुडविल एंड पेटेंट्स, ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, ठीक है? इसमें एक्चुअल में थोड़ी आपका एक्सपेंस जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपको किससे रिलेटेड है? ये आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है, मतलब आपने कोई डिबेंचर या लोन बोरो किया, उस पर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सब एड बैक होंगे, ठीक है?
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे एड बैक हो जाएंगे, ठीक है। देन राइटिंग ऑफ अंडरराइट, ये भी आपका क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है, जो शेयर्स आप बेचते हो तो डायरेक्टली कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेचती, वो क्या करती है, डायरेक्टली कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेचती, डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स बेचने के लिए कमीशन देते हैं किसी एजेंट्स वगैरह को, फिर उसके थ्रू शेयर्स बेचे जाते हैं, तो उसको कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो शेयर को इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी को वन टाइम पे करने पड़ते हैं जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो वो आपके अगेन इसमें फॉल नहीं करेंगे, वो इस पर आपने इसके वो आपके किस एक्टिविटी में फॉल करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए वो आपके वन टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं, तो इस ईयर तो आपने नहीं पे किया वो, तो आप उसे माइनस नहीं कर सकते, तो ऐड बैक कर दो। लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें सब एक्सप्लेनेशन है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जो हमारे एसेट्स रिलेटेड होती है, नॉन लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये हमारी एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसलिए ऐड बैक होगा। इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा क्या है, ये एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस है, हमने एक्चुअली इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं है हमारे ये, इसमें हमारा कोई कैश गया थोड़ी है, हमने तो प्रोविजन बनाया कि इतना हमको शायद हो सकता नहीं मिले, प्रोविजन बनाया हमने कि इतने डेटर्स हमें पैसे नहीं पे करें सपोज, तो ये हमने इनको इंक्रीज करा हुआ है, इसको हमने जो हमने एक्सपेंस हमारा अभी हुआ ही नहीं है, हमने उसको इंक्रीज में दिखा रखा है, जो हमारा एक्चुअल में हुआ नहीं, कैश एक्चुअली गया थोड़ी कंपनी से, तो नॉन कैश इनकम होगी, नॉन कैश एक्सपेंस हो गया ना, तो नॉन कैश एक्सपेंस कैसे आप उसको नॉन कैश एक्सपेंस को भी ऐड बैक करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब आता है आइटम्स जो हमें डिडक्ट करने हैं। अब देखिए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है, सपोज करिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आप जब कभी इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सपोज आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड्स में, या आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं, आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं किसी एसेट में, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट आपकी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है, इन्वेस्टिंग इनकम होगी, तो इन्वेस्टिंग इनकम जो आपकी होती है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा क्या होती है, माइनस। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम क्या होती है, सपोज आपने किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, आपने किसी कंपनी ने, मतलब आपकी जो कंपनी है उसने कहीं शेयर्स को इन्वेस्ट कर दिया, उससे उसको डिविडेंड मिल रहा है, उससे उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये आपकी क्या है, डिविडेंड इनकम होगी ना, कि आपको डिविडेंड वहां से मिल रहा है, आपने डिविडेंड पे नहीं किया है कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट मैंने पे नहीं करा इधर, इंटरेस्ट इनकम एक फॉर्म में मुझे मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म में मुझे कब मिलेगी, जब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ होगा और उस इन्वेस्टमेंट की मुझे इनकम मिल रही होगी, सपोज मैंने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी एफडी में, उसका इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी इंटरेस्ट इनकम, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, माइनस। डिविडेंड इनकम अगेन आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो माइनस, और ये ध्यान रखिएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा माइनस होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, नॉन कैश इनकम्स माइनस होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिविडेंड इनकम समझ आ गया, तो अगर सपोज डिविडेंड कब मिलता है, सपोज मैं किसी कंपनी के में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं एज अ डिविडेंड मुझे कब मिलेगा, वो डिविडेंड जब मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा, अपनी कंपनी में खुद में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी और कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो जब मैं सपोज ए कंपनी हूँ, मैंने बी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो बी कंपनी मुझे डिविडेंड देगी मेरे शेयर्स के ऊपर, तो वो मेरी डिविडेंड इनकम है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो वो मेरी क्या होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं, इन्वेस्टिंग इनकम है वो तो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, माइनस। रेंटल इनकम, अगेन आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और उससे आपको रेंट आ रहा है, आपने कोई फ्लैट खरीद लिया और उससे आप रेंट पे चढ़ा दिया, आपको उससे इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको आपसे उसको रेंट मिल रहा है, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस। आपको गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपको गेन हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन आपकी इनकम है, तो माइनस, इन्वेस्टिंग इनकम होगी। देन डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऑब्वियसली आपने इंक्रीज को माइनस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्रीज में ऐड किया था, डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ, इसका मतलब आप माइनस कर दो क्योंकि वो आपकी इनकम हो गई, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग सॉरी नॉन कैश इनकम हो गई, ठीक है ना, इसमें कोई इनकम तो नहीं हुई ना, नॉन कैश इनकम कैसे हुई, क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ज्यादा दिखा दिए थे, आपको लगा था कि मेरे इतने डेटर सपोज 15,000 डेटर्स मुझे अमाउंट नहीं देंगे, लेकिन आपको पता चला कि खाली मेरे बस 12,000 डेटर्स हैं, जो मुझे 12,000 ही हैं ऐसे जो मुझे डाउटफुल डाउटफुल लगते हैं, जो मुझे मतलब पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपका प्रोविजन 3,000 का कम हो गया, तो एक्चुअल में थोड़ी कैश कम हुआ है,
एक्चुअल में आपने प्रोविजन ज्यादा का बना लिया था 15,000 का, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ 12,000 का ही नुकसान हुआ है, तो आपका 3,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी हुआ था, तो नॉन कैश इनकम हो गई, तो नॉन कैश इनकम माइनस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अब देखिए अब हमारा क्या आ गया, इसके बाद एडजस्टमेंट हमने चारों की एडजस्टमेंट कर दी, नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में कौन कौन से, डेप्रिसिएशन है, गुडविल पेटेंट्स है, ठीक है। नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम हमारी कौन सी, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताई दी है, तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब करंट एसेट डिक्रीज होते हैं, जब करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एसेट्स बेचे तभी तो मेरे डिक्रीज हुए, तो मेरे कैश जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मैंने फर्नीचर खरीद लिया, मैंने मशीन खरीद ली, तो मेरा कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा, तो मेरा कैश डिक्रीज होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स देयर इज इंक्रीज इन कैश फ्लो, इंक्रीज इन कैश इनकम, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट देयर डिक्रीज इन कैश इनकम, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज इन करंट, अब देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम क्या करेंगे, इधर हमारे करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे कैश को, देखिए ऐड लिखा हुआ है ना इधर, दिख रहा है आपको ऐड, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो हमारे होंगे उन सबको हम ऐड करेंगे, देखिए अब ऐसे पता चल जाएगा आपको, करंट एसेट्स अगर हमारे, देखिए करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज होंगे तो कैश इंक्रीज होगा, करंट एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज होंगे तो हमारे करंट कैश हमारा डिक्रीज होगा। सिमिलरली उल्टा हमारा किसका हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज का, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, इसका मतलब हमने अभी पेमेंट क्रेडिटर्स को नहीं करी है, तो हमारा कैश इंक्रीज ही है, हमारे पास ही हमारा कैश है, ठीक है। अगर हमने करंट लायबिलिटीज को पे कर दिया है, दैट मीन्स हमारा कैश कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज को पे किया मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो गई, तो हमारा कैश भी कम हो गया, समझ आया। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है कि ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, देखिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, समझ आ गया, इसलिए ये सब ऐड किया। अब दूसरा देखिए, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन इनकम्स। अब ये सब आपके सब क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, इन सब के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और पता चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज कब करना है। अब देखिए लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो रही होगी तो आपको क्या करना है, माइनस, जब इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहे होंगे तो क्या करना है आपको, लेस, ठीक है। अब फाइनली इससे क्या निकलेगा, हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर हम उससे हम क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पेड, फिर हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका ओनली एक चीज निकलेगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।